today let's start with chapter number 6, reproduction. In this chapter, we will study about reproduction, modes of reproduction पढ़ेंगे, sexual reproduction, viviparous and oviparous animals के बारे में पढ़ेंगे और एक sexual reproduction and lastly reproduction in human. All organisms reproduce in different way. कुछ egg lay करते हैं और कुछ क्या करते हैं, अपने babies को birth देते हैं. ठीक है, some organisms reproduce by other means. और reproduction क्या है? It is defined as process by which living things produce offspring of their own kind. जो living things क्या produce करता है? Offspring produce करता है of its own kind, उसको हम reproduction कहते हैं. Ability to produce offspring on new individual of same species through sexual or asexual method, वो एक fundamental feature है for all whole life. A new individual usually goes through a period of growth and development before it reaches a stage. It is because of reproduction that life continues from generation to generation. The life continue करती है from generation to generation. All other system of living organisms are essential for life. If one of them were to stop working, अगर इसमें से कोई भी एक stop कर जाएगा तो organism will die. ठीक है, however, without the organism cannot produce offspring and cannot continue species. Two basic types of reproduction, namely sexual और asexual. Asexual reproduction जिसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर. इसमें अनदर इंडिविजुअल की नीड नहीं होती. सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. ये आपको एमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्पंजेस और वर्म्स में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल्स आर नीडेड. नो इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस. मोस्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं. Most animals and plants produce by method of sexual reproduction. For sexual reproduction, two parents, one male or one female is required. Male and female have different reproductive organs. Each parent has a special sex cell, जिसे हम gametes कहते हैं. Animals में gamete क्या produce by the female is called egg or ovum. जो produce होता है male, that is produced by male is called sperm. The egg and large cell contain yolk which store food. Sperms are very small. उनकी एक long tail होती है जो enable करता है to swim to the egg. When the sperm and ovum fuse together, they form zygote, और this is the first cell of new organism. ठीक है? It goes through a specific changes, and the process of fusion of the sperm and ovum is called fertilization. इस process को क्या कहा जाता है? Fertilization. In animals जैसे frog, fishes, bird, reptiles and human, individual carry करता है एक kind of gamete, या तो sperm करेगा या फिर ovum करेगा. In some organisms, both male and female gamete are present in same individual. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम hermaphrodites कहते हैं. और earthworm और leeches क्या हैं, they are hermaphrodites. Each earthworm and leech is both male and female. There are two basic ways जिससे fertilization होती है. वो method है external fertilization और internal. सबसे पहले हम बात करते हैं external fertilization जो बाहर होती है, in which fusion of gamete take place outside the body. जो most aquatic animals की अगर हम बात करें, जैसे bony fish, male and female raise their sperm and egg into the surrounding water. Sperm swim to the egg or fertilize them. This fertilization takes outside the parent body. कहाँ होती है? Parent body से बाहर होती है. During spring and rain season, frog and toads ये ponds पे जाते हैं. Spring में male and female claps each other in water. Water में claps करते हैं. And the female lays hundreds of eggs and the egg delicate do not have a shell. A layer of jelly-like substance hold them together and provides protection. और जो male जो होता है, मेल इफेक्ट स्पर्म डायरेक्टली ऑन द क्लस्टर ऑफ फ्लोटिंग एग. जो स्पर्म स्विम करता है वाटर में और जो उसकी टेल होती है वो फर्टिलाइज करती है किसको, एग. ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. कहाँ हो रही है? फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. Human reproduction have two sexes, male and female. Each sex have different reproductive system. फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है और जो डेवलपमेंट है ज़ायगोट का इनको फुल्ली फॉर्म इंडिविजुअल वर्कर होता है इनसाइड द बॉडी. मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले. इसमें आपके पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं. ठीक है. इसमें ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन. इसका सेक्टोरल सेक्ट होता है जिसमें टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी सो दे कैन रिमेन. ये होल्ड रखते हैं टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी से ठंडे रहे, कूल रहे. स्पर्म डक्ट और वेस्ट डेफिन द ट्यूब जो कैरी करता है स्पर्म टू द यूरेथ्रा. सेक्स ग्लैंड ये मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड टू द स्पर्म डक्ट और स्पर्म को लाइव रखते हैं. और जो फ्लूइड है वो क्या फॉर्म करता है, सेमेन.
पेनिस ये मेल सेक्स हार्मोन है, इट्स मेड ऑफ मसल, ये ट्रांसफर करता है स्पर्म इनटू वेजिना ऑफ फीमेल बॉडी। स्पर्म, हर एक स्पर्म सेल क्या है, एक सिंगल सेल है। टेस्टिस ऑफ द हेल्थी मेल रिप्रोडक्ट 2 बिलियन स्पर्म एवरी डे, ईच स्पर्म हैज अ हेड, मिडल पीस और अ टेल, और द स्पर्म है वो स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ द टेल। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं जो एग और ओवम रिप्रोड्यूस करती है। व्हेन फीमेल रीचेस प्यूबर्टी दे आल्सो प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो ओविडक्ट होता है, वो जो फेलोपियन ट्यूब होती है, वो फिनल शेप्ड ओपनिंग होती है, वो एग को टुवर्ड्स द यूट्रस ले जाती है। एंड द यूट्रस वॉर्म इज पियर शेप्ड ऑर्गन, देयर इज फीटस जो डेवलप होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद। Uterus open in a wide muscular tube, some vagina capillaries, sperm reaches here by the parents during sexual intercourse. इस passage through जिससे babies come out of during the walk, और baby क्या होता है, बाहर आता है during the birth. Fertilization occur in the interior part of the ovule, semen deposit in the vagina, with it the sperm move up with the help of their tail or towards the ovule. और जो mature egg है वो release होता है, and if an egg is present in the ovule, one of the sperm may fuse with it, और then fertilization takes place. इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। आप डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ बेबी, डू यू नो व्हाट डिटरमाइंस वेदर द बेबी इज डेवलपिंग इनसाइड द बॉडी, वो बॉय है या फिर गर्ल। ये डिटरमाइन होता है बाय द क्रोमोसोम्स, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ईच सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, फीमेल सेल कंटेन XX पेयर, मेल जो सेल होता है वो XY पेयर कंटेन करता है। The gamete and sperm that contain only one chromosome, an egg has X chromosome, और sperm के पास क्या होता है, Y chromosome। ठीक है, if a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would be XX and would develop into female। ठीक है, अगर Y chromosome है तो वो XY होगा और it will be a male, वो क्या होगा, male होगा। Now role of chromosome in sex determination, role क्या होता है sex determination में। Development of fetus after the fertilization, the zygote passes into uterus and divides again and again, और ये embryo form करता है और it is embedded with the lining of the wall, इसको हम implantation कहते हैं। After 2 months embryo जो होता है वो resemble करता है human form को, जिसे हम fetus कहते हैं, और वो 9 months लेता है and embryo grow to develop into a fully formed body। Fetus depends upon the mother as it develops, protection, oxygen, nutrition, removal of heat, सब वो किस पे डिपेंड होता है, मदर पे डिपेंड होता है। ठीक है, the fetus is protected by uterus and amniotic fluid. Amniotic fluid provides nourishment, और वो एक कोशिश की तरह हमारे किसको, वॉर्म को, फीटस को प्रोटेक्ट करता है। फीटस जो होता है वो यूट्रस से अटैच होता है। प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूविंग वेस्ट सच। जो आपकी प्लेसेंटा होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, या वेस्ट को रिमूव। Placenta go into a wall of uterus and it is connected to the fetus by an umbilical cord. Mother blood does not mix with the blood of fetus, क्योंकि जो placenta है allow करता है substance, oxygen और nutrition को to diffuse across the placenta from the mother to fetus. The waste substance जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो diffuse करता है across the placenta और from the fetus. During the period of gestation, body of the mother feeds the fetus, breathe for it, excrete the waste, और उसको वार्म रखती है और प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डैमेज एंड डिसीज। फीटस फॉर्म एंड डेवलप फॉर अबाउट 9 months, इस पीरियड को प्रेगनेंसी कहा जाता है। एंड आफ्टर 9 months बेबी विच इज फुल्ली फॉर्म इज बॉर्न, बेबी जो फुल्ली फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाता है, बॉर्न हो जाता है। नाउ बेबी पैरस एंड ओविपेरस एंड बेबी पैरस क्या होता है, एनिमल्स वेयर द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डिफरेंस वे इन विच फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू न्यू जेनेरेशन। देखो बेबी पैरस क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें बेबी पैरस, और ओवी पैरस क्या होते हैं, जो एग ले करते हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज बेबी पैरस। जैसे आप देखते हैं ह्यूमन, टाइगर, गोट, काउ, कैट, ये क्या है, बेबी पैरस। ओवी पैरस जो एग ले करते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, बटरफ्लाई, ये ओवी पैरस है। ये न्यूली हैच चिक ऑफ बर्ड्स को स्ट्रक्चर देते हैं। And however, this is not so throughout the animal kingdom. For example, caterpillar emerges from the egg of butterfly. और थोड़ा अलग लगता है, देखो डिफरेंट लगता है, बटरफ्लाई की तरह लगता है। अब आप फ्रॉग का ही देख लो, देखो टेडपोल, एग है, फिर एम्ब्रियो है, टेडपोल कैसा, देखो इस क्या कर रहा है, डे बाय डे चेंज हो रहा है। A frog passes through 3 stages during the development from an egg to an adult. कितने स्टेज में पास करता है, 3 में। कौन कौन से, एग, टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग।
The tadpole then hatches out the egg and looks very different from adult frog. It undergoes finally become frog. और finally वो क्या बन जाता है? Frog बन जाता है. Next is the transformation of larva into an adult through drastic changes. जो changes होते हैं, जो drastic changes होते हैं लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनने में, उसको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज मेटामॉर्फोसिस. क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस. Asexual reproduction, some organism reproduce through sexual reproduction. ये प्लांटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है, कंडीशन होती है गुड फॉर ग्रोथ. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें प्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म बाय जस्ट वन पेरेंट. इसको टू सेक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बहुत सारे अलग अलग आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले बाइनरी फिशन. इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल होता है इनटू टू पार्ट. दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में दिखती है, सेमीविया और पैरामीशियन. ये फुली ग्रोन पैरेंट सेल होता है जो टू हाफ्स में क्या होता है? स्प्लिट होता है. इन एमीबिया न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करता है दो पार्ट्स में. और वो क्या रिसीव करता है? न्यूक्लियस. टू डॉटर वो ग्रो करती है, एक्वायर करते हैं इनटू अ फुल साइज सेल. बडिंग, न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अ फॉर्म ऑफ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन. बस में बड होते हैं, ठीक है. इट ग्रोज एंड मैनी इवेंचुअली सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट. और इवेंचुअली क्या होता है? वो पेरेंट से सेपरेट. देखो ऐसा इतना फिर वो इवेंचुअली सेपरेट हो जाता है. In hydra, bud appears on the body wall, which grows into full hydra. और coral and sponges birds do not separate out but remain at all. जो coral और sponges होते हैं वो separate नहीं होते, ठीक है. They grow to full size and reproduce again and again and give rise to a fit. एक chain बन जाती है, ठीक है. क्या बन जाती है? एक chain form होता है. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.